Hello, dear children. How are you all? Today we will be doing lesson number 3 in SS. The name of the lesson is Ancient Towns and Scripture. Ancient Towns यानी बहुत पुराने टाउन यानी शहर, और स्क्रिप्चर यानी वहाँ उस टाइम पे कैसा लिखा जाता था वो सब. Okay. Now we often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilization of human society. Centuries old civilizations still inspire human life. Out of this civilization we shall study about हरप्पन सिविलाइजेशन. अब इसमें ये बताया जा रहा है, दो वर्ड्स है कल्चर और सिविलाइजेशन. कल्चर का मीनिंग क्या है? कल्चर एक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बात है, और सिविलाइजेशन मतलब इंसान खुद क्रिएट करता है, जो वो अपने कैलिबर, अपनी कैपेसिटी, स्किल और हुनर से तय करता है कि उसे क्या करना है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम, ये सब लोग, सारे कंट्रीज अच्छा सिविलाइजेशन हमको दिखाते हैं, और सेंचुरीज, 100 सालों से पुराने सिविलाइजेशन के बारे में हमको बताते हैं, और उनसे ह्यूमन लाइफ इंस्पायर होती है. और इसी के चलते हम आज हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. सी हियर यू कैन सी अ मैप, and here it is written places of Harappan civilization. Here you can see this is Neolithic age, this is our Harappan civilization, and these are modern cities. So triangle वाला जितना है वो Neolithic यानी related to stone, और आगे change होता जाता है वो हरप्पन यानी civilized person, जो एक पूरा civilization है, और मॉडर्न सिटी यानी आजकल के मॉडर्न सिटीज़ जो बाद में धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे. ये yeah, you can see so many places are Harappan civilization. That is the orange circle. See all these places, they were following this Harappan civilization. This is all Neolithic यानी जो पुराने जो एडवांस हो रहे थे स्टोन से रिलेटेड, स्टोन एज कहा जाता है. एंड दीज आर मॉडर्न सिटीज विच आर इन ब्लू triangles, or sorry, squares. We know Harappan civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of the places like the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhigarhi, etc. See the locations of place of Harappan civilization in the map 3.1. Let's get introduction of town planning of some of the major cities of their features. All these places are mentioned over here and you can find it here on the map. ये सारी जगह पे हरप्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था. Now टाउन प्लानिंग मीन्स टाउन कैसे बनाया जाता था, वहाँ का मकान कैसे होते थे, रोड्स कैसे होते थे, स्ट्रीट लाइट थी या नहीं थी, ड्रेनेज फैसिलिटी, वो सब चीज़ें दिखाते हैं. नाउ टाउन प्लानिंग. Organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was on westward side and colony of common people on the east side. Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by a fortress. Most probably rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in their towns structures. Let's study about various features of Harappan civilization. उसमें कैसे था कि टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था उस ज़माने में हरप्पन सिविलाइजेशन में, और सारे टाउन्स इतने प्लानिंग के साथ बने गए थे. जो महल होता था वो वेस्ट साइड में होता था, और जो कॉमन लोगों के रहने की जगह थी वो ईस्ट साइड में होती थी. और बड़े बड़े महल वो और बीच में हाईवे आता था. एक तरफ महल था और एक तरफ कॉमन पीपल रहते थे, और जो महल थे बड़े बड़े फोर्ट, किले जिसको बोलते हैं, वो वेस्ट में थे,
और उसके आजू बाजू छोटे छोटे फोर्ट्रेसेस यानी छोटे छोटे किले बनाए जाते थे। और मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स जो रहते थे, वो जो राजा रहते थे, वो महल में रहते थे, फोर्ट में रहते थे, और ब्रिक्स का यूज करके महल बनाया जाता था। नाउ रिमेनिंग थिंग्स in the next video. Thank you. Now, main feature of Harappan civilization was their organized house arrangement. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. One of the feature of the houses of Harappa was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. Here, single and double storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which was connected north with south and the other connected east to with west. So nice planning they had done. मेन फीचर क्या था वहाँ का? हाउस अरेंजमेंट. उनके घर इस तरह से बनाए जाते थे हाई प्लेटफॉर्म पे, यानी ऊंचाई पे बनाए जाते थे. बड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा करके उस पर बनाए जाते थे, ताकि बारिश ज़्यादा आए तो फ्लड आए, कि डैम्पनेस जमीन में से जो सिलन होती, यानी जिससे पूरा दीवार वगैरह खराब होती, वो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि घर ऊंचाई पर बनाए जाते थे. और दूसरा एक बात उनके घर का ये था, खास बात, कि उनका घर का जो मेन दरवाज़ा है वो गलियों में खुलता था, लेन्स में खुलता था, बराबर, रादर देन टुवर्ड्स द मेन रोड पर नहीं खुलता था, गलियों में खुलता था. और इतना अच्छा उनका काम था. और उनके मकान उस ज़माने में भी सिंगल और डबल स्टोरी घर थे, और रोड कंफर्टेबल थे, बड़े अच्छे रोड्स थे और इजीली आ जा सकते वैसे थे. और दो हाईवे थे, एक नॉर्थ से साउथ को जाता था और एक ईस्ट से वेस्ट को जाता था. ये यू कैन सी पब्लिक बाथ. दिस इज अ पब्लिक बाथ. यहाँ पे वेल्स के स्टेप यानी सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ पे, ये पब्लिक बात है. यहाँ पानी भरा रहता था और यहाँ पे आके सब लोग नहा सकते थे. ओके, नाउ this is public bath of Mohenjo-daro. Here, streets were parallel to the main road. Roads intersected each other at right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. Evidence of nightlight system has also been obtained on public roads. There were highly developed and systematic system for disposal of water. यानी यहाँ की जो स्ट्रीट्स है, जो रास्ते हैं, वो मेन रोड के साथ बराबर साथ साथ में चलते हैं. एक बाजू स्ट्रीट होती है, गली, और एक बाजू मेन रोड होता है. और रोड से वो इंटरसेक्ट होते थे एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल बनाते. हर एक रोड इंटरसेक्ट होता था. और इनके जो घर बनाए और पूरा टाउन जो था वो इतनी अच्छे से बनाया गया कि ऐसे यहाँ पे ऐसे, फिर बाजू में दूसरा, ऐसे करके स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स बनते थे और इतना सुंदर लगता था. और उनके उस ज़माने में भी लाइट की सिस्टम थी, ये हमको एविडेंस पे से पता चलता है. और दूसरा, पब्लिक रोड पे लाइट थी और वहाँ पे हाईली डेवलप्ड सिस्टमेटिक डिस्पोजल, यानी गंदे पानी के जाने का, जो वेस्ट वाटर का जाने का था, वो सिस्टमेटिक था, कहीं भी रोड पे इधर उधर नहीं जाता था. द वाटर फ्रॉम each house flowed into small sewer and from small sewer to large sewer. हर एक घर में से पानी निकल के एक छोटी सी टंकी जैसा बनाते थे, उसमें जाता था खुद के घर के पास, और वहाँ से लाइन में से जाके आगे बड़ी टंकी जैसा बनाया जाता था, जो कचरा डालने की टंकी जैसा होता है, उसमें जाता था. वाटर फ्रॉम लार्ज sewer flowed out of the city town. A public bath has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. There are steps arranged on both the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasions. In addition to this, pillared houses used as assembly halls have been found in Mohenjo-daro. Harappa is an archaeological site located in Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been main town of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of the river Ravi. अब यहाँ पे क्या होता था कि जो सिटी का ये कचरा सारा था वो बाहर जो टैंक में जाता था, उसमें से बाहर
पूरे सिटी के बाहर ही निकल जाता था, यानी गांव पूरे सिटी में कहीं गंदगी देखने को नहीं मिलती थी। और यहाँ जो पब्लिक बाथ, यहाँ पे आपने ये देखा, दिस इज अ पब्लिक बाथ। यहाँ पे पानी रहता है और आप नीचे उतर के इसमें बात कर सकते हो, और साइड में अंदर की तरफ चेंजिंग रूम भी है। ओके, सो यहाँ पे रोज नहीं सब लोग आते थे बात करने के लिए, बट कोई फेस्टिवल है कि कोई ऐसा फेस्टिवल में जिसमें नदी में नहाना ज़रूरी है, तब यहाँ पे लोग आते थे। इसके अलावा यहाँ पे हड़प्पा है जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और जो मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है। आज ये पाकिस्तान में कहलाया जाता है। और हड़प्पा का मेन टाउन, हड़प्पा मस्ट हैव बीन मेन टाउन, हड़प्पा मेन टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसका मेन फीचर क्या था कि यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रेनरी थी, यानी 12 ग्रेन स्टोर्स रवि रिवर के पास पाए गए हैं। रिमेनिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Now, Lothal is situated on the banks of Bhogavo River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient times. A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessel or ships arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition, warehouses and bead factory have been found here. So, it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. अभी हमने हड़प्पा देखा, अभी हम लोथल के बारे में बात करेंगे। लोथल है वो भोगावो रिवर, जो हमारे यहाँ भोगावो है वही रिवर उस धोलका तालुका में वहाँ पाया गया है। लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोथल है, वहाँ पे एक कमर्शियल पोर्ट है और वो एक इंडस्ट्रियल टाउन है पुराने ज़माने का। इंडस्ट्रियल यानी वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, और एक स्ट्रक्चर मिला है ब्रिक्स का। लोथल में एक ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है जो ये बताता है कि वो, ऐसा लगता है कि वो डॉकयार्ड होगा। डॉकयार्ड यानी जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं और रुकते हैं, और या उसको वेसल भी कहा जाता है। उसमें से सारा सामान जो बाहर की कंट्री में से आता है वो उतारा जाता है, अनलोड किया जाता है, और यहाँ से बनी हुई चीज़ उसमें लोड की जाती है ताकि बाहर बेच सकते। इसके अलावा वेयर हाउसेस भी मिले हैं, यानी जिसमें सामान भरकर रखा जाता है। इसलिए पता चलता है कि वो एक डॉकयार्ड है। और इसलिए लोथल था वो प्रॉस्परस पोर्ट माना जाता था, क्योंकि वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन का चलता था। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 13. See here you can see this is the dockyard of Lothal port. See here ships come and stand, and then goods are loaded and unloaded. Okay. Now Dholavira is an archaeological site located in the Khadirbet area in Bhachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappan towns are divided into two parts. Bilateral, yani do, while the town of Dholavira is divided into three parts. That is trilateral. Citadel Fort, Upper Town, Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. Here, as I explained, धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो खादिर बेट भचाऊ तालुका कच्छ में है। और यहाँ पे हड़प्पा में टाउन्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, लेकिन धोलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। सिटाडेल, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। यानी सिटाडेल यानी ऐसी जगह, ऐसा महल जहाँ पे सारे संरक्षण बचाने के सारे सामान वगैरह रखते थे। अपर टाउन यानी थोड़ा ऊंचाई पे शहर बनाए जाते थे, और लोअर टाउन। और हड़प्पा में कैसा था कि 2 ही थे, एक ईस्ट साइड और एक वेस्ट। ऊपर एक साइड महल, एक साइड कॉमन पीपल रहते थे। ओके, सो धोलावीरा हैड 3 एंड वहाँ की मेन स्पेशलिटी क्या है कि धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छी थी, यानी जो बारिश का पानी बचाया जाता था और उसे कैसे यूज़ करते थे वो था, और अच्छे बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए थे। कालीबंगन टाउन of Rajasthan was the headquarter of agricultural revolution in Harappan civilization.
The remains of farms here provide proof of this. The upper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. अभी कालीबंगन जो टाउन्स राजस्थान में है वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का हेडक्वार्टर था, यानी मेन चीज़ वहाँ से होती थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। और वहाँ पे हमको इसके प्रूफ भी मिले हैं क्योंकि वहाँ खेत उसमें यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब दिखाया गया है। इसके अलावा कॉपर रेसिड्यू मिला है, कॉपर यानी तांबे के रेसिड्यू मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में कॉपर के टूल्स यूज़ किए जाते थे और उसको खेती में भी बनाते थे और यूज़ करते थे। Thus, the town planning of Indus Valley civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of ruling city elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. इसलिए हमको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज, अच्छी तरह बसाया हुआ, वेल इंजीनियर्ड यानी अच्छी तरह इंजीनियरिंग का दिमाग यूज़ करके उसको बनाया गया है, वेल प्लान करके यानी इंसान वहाँ रहने वालों को तकलीफ ना पड़े और एफिशिएंटली रह सके, इस तरह से बनाया गया है। और जो वहाँ पर रूल करने वाले राजा वगैरह थे वो भी एकदम होशियार, इंटेलिजेंट थे और इंजीनियर्स के पास अच्छे से काम करवाया था। सो नाउ रिमेनिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।